Friends, it is quite astonishing the amount of misinformation and distortion which has been going on since today forenoon in regard to the court proceedings of Young India / National Herald. I sometimes wonder if the government does not have better things to do with governance in this country than to circulate unsigned notes of briefing to all of you, which are actually campaigns of misinformation and distortion. We have one such note, which is the government's version of what happened regarding the judicial challenge in the income tax matter of Young India. It is a very sorry, sad state to find government agencies by proxy, through anonymity, deliberately engaging in incomplete, partial, distorted, slanted misinformation, possibly bordering on contempt of court, because it is deliberately distorting court orders passed in our presence. My presence, I happen to be a counsel arguing the matter. This shows the government's fear, insecurity, and vindictive approach. Let me explain to you why I say this. A notice is issued to Young India supposedly reopening assessment 6 years ago. Suddenly no income tax proceedings are pending. Suddenly a notice is sent in 2014, immediately after this government comes, reopening proceedings 6 years older. The notice is based on 2 queries about a company. To cut a long story short, we go to the writ court today after we get reasons from the department, and our principal ground in the writ court today was that the department had no jurisdiction to issue this notice and has no jurisdiction to reopen proceedings because, as per the statute, the department has, inverted commas, open and close, no reason to believe, which is essential precondition to reopen proceedings. I hope you are clear till now. Now the order in the course of proceedings, the High Court observes to us, today, I happen to argue it, that all the points which we have raised in the writ in the High Court can be raised by Young India before the department. All, including the point that the department had no reason to believe to reopen. So the court put to us that why do you come here? Why don't you go to the department? Because you can raise all the points you've raised here before us, before the department. And then they recorded my statement and expressly gave me liberty. They recorded my statement and expressly gave me liberty in the judicial order. That all points raised by me in the writ in the High Court today can be raised in the department, including the jurisdictional point that the department had no reason to believe to issue the reopening notice. In that view of the matter, because of that, I withdrew the writ. Now, is this is the order? Is this what you have been told? Is this what you are reporting? The unsigned note circulated by terrified government proxies who have nothing better to do is using all adjectives. Somebody is saying there is a direction by the court to the IT department to investigate. Please produce the order today. We will apologize to you if the order shows this.
Is it not contempt of court? Some of you are told to publish that the order says Sonia Gandhi you appear, Rahul Gandhi you appear. I have the note. He will circulate to you right now if you want. This is what government agencies are doing. Feeding the press misinformation. When my grievances, all of them, are kept open to be raised there in the IT department, including my grievance that jurisdictionally the department had no reason to believe to issue the notice in the first place, then why should I argue before the writ court? That is the black and white order. Now, where do you all get this that the court directed that IT should do this and that? Where do you get this that the court directed that Mr. So-and-so or Mrs. So-and-so should appear? Is this fair reporting? Is this the fair conduct of government agencies? Friends, we are proud to be associated with the National Herald. We are proud to be associated with the newspaper, which in the pre-independence era stood up for free speech when the British were stifling and throttling free speech, very similar to present day climate. National Herald stood up for certain ideas and we fully support with pride this initiative. I am now not talking of today's case, but we have already dealt with it from this podium, and if necessary I will remind you by giving you a handout. Has anybody benefited financially from this? Is it possible? A Section 25 Companies Act, not-for-profit company, prohibits the paying out of dividend, prohibits the giving of pecuniary perks, etc. Who has gained financially? It's a 25 company. No financial gain is possible. Has there been an asset transfer? None. Can a political party receive or give loans? Direct provision says yes. Income Tax Act directly says yes. Is it a real estate company? It is somebody's febrile and fertile imagination which thinks so. These are properties owned by this company for decades. And who can benefit? It will remain the property of a not-for-profit Section 25 company. Yes, we understand that the government wants to indulge in this campaign of misinformation only because either they want to supply information to their proxies who are fighting us in court, or they want not to go by the facts because they are scared of the facts. लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये एक बहुत दुखद प्रसंग इसलिए है कि सरकार को लगता है कोई और महत्वपूर्ण काम करने का समय या जरूरत या इरादा नहीं है। आज दिन भर से मुझे अचंभा हो रहा है, सुबह से सरकार के प्रॉक्सी, सरकार के एजेंट्स आप सबको अनसाइन नोट सर्कुलेट कर रहे हैं। हमारे पास भी है वो नोट, इनसे बोलिएगा ये आपको दे देंगे, जिसमें कि विकृत, अजीबोगरीब, असत्य, गलत, झूठे समरी बनाई गई है कि आज कोर्ट में क्या हुआ। मैं समझता हूं इससे उनकी भय और बौखलाहट ज्यादा दिखती है बनिस्बत ये जो आक्षेप और आरोप और अटकलें लगाई जा रही हैं। जो कहा जा रहा है आपको वो उच्च न्यायालय के लिखित आदेश के विरुद्ध है। लिखित आदेश से ना आप दूर भाग सकते हैं ना मैं दूर भाग सकता हूं। मैंने आज उसकी जिरे और बहस की है, इसलिए मैं आपको संक्षेप में वो समझा दूं उसका संदर्भ, और आप अपने आप निर्णय ले लीजिए कि जो आपको बताया जा रहा है जानबूझकर गलत छापने के लिए, विकृत छापने के लिए, एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करके, वो सही है या गलत है, और क्या एक गौरवशाली भारत के
स्वतंत्र सोच और स्वतंत्र प्रकाशन में ये संतुलन जो दिखा रही है सरकार सही है। इस सरकार के आने के बाद 2014 के बाद आईटी डिपार्टमेंट आदेशानुसार एक नोटिस देता है 5-6 वर्ष के पुराने असेसमेंट वापस पुनः खोलने के लिए। उस खोलने के 2 कारण देता है नोटिस में, सिर्फ उसका जवाब वगैरह इत्यादि होता है। लेकिन अगर आज की बात संक्षिप्त में कहनी हो तो जब उच्च डिपार्टमेंट का चिट्ठी आ जाती है तो हम एक याचिका में जाते हैं उच्च न्यायालय में। हमारा प्रमुख बेसिस उस याचिका में है कि डिपार्टमेंट के पास कोई भी रीजन टू बिलीव नहीं था। रीजन टू बिलीव एक कानून का फ्रेज है जो अति आवश्यक है किसी नोटिस द्वारा पुराने वर्ष का किसी भी व्यक्ति का असेसमेंट खोलने के लिए। तो हम याचिका में कहते हैं कि रीजन टू बिलीव नहीं है डिपार्टमेंट के पास, इसलिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि 5 साल 6 साल पुराना असेसमेंट खोलें। उच्च न्यायालय आज काफी समय तक सुनती है उस मामले को और ओपन कोर्ट में 4 घंटे पहले मैंने दलील की है, कहती है कि आप याचक हैं, जो आपको आपत्तियां हैं, जो आपत्तियां आपने इस याचिका में लिखी हैं, वो हर आपत्ति को आपको हम छूट देते हैं, पुनः वापस जाके डिपार्टमेंट के सामने उसी को आप दोहरा सकते हैं और डिपार्टमेंट बाध्य होगा उसमें कानून के अनुसार एक निर्णय देने। उसके बाद उच्च न्यायालय ये और स्पष्टीकरण देता है कि आप पुनः डिपार्टमेंट के पास जाकर अपनी सभी दलीलों को दोहरा सकते हैं। उस दोहराने में ये भी शामिल है कि आप डिपार्टमेंट को ये बता सकते हैं कि क्यों ये नोटिस जब तक रीजन टू बिलीव नहीं हो तब तक नहीं दिया जा सकता और क्यों इस केस में रीजन टू बिलीव नहीं है। आपको सिखाया पढ़ाया जा रहा है बच्चों की तरह लुके छुपे स्लिप्स दे देके कि उच्च न्यायालय ने कहा कि जाओ डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट तहकीकात करो, 3 घंटे पहले का ऑर्डर निकाल लीजिए। कहां लिखा है ये? अगर ये लिखा है तो हम आपसे माफी मांगेंगे। क्या ये सही है? क्या ये संतुलित? इस सरकार का काम ये है कि इस प्रकार के बिना हस्ताक्षर के गलत फरेबी विकृत नोट्स द्वारा आपको बरगलाएं। किसी और मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि कहा गया है कि सोनिया गांधी आप पेश हो, राहुल गांधी आप पेश हो, फलाना ढिक्कड़ आप पेश हो। उच्च न्यायालय ने कहा है, कृपया मुझे अवगत कराएं कहां लिखा है ये। मैं तो खुद पेश होकर आया हूं कोर्ट में भी। 2 वाक्य में एक बात हुई, हमने याचिका की कि आईटी डिपार्टमेंट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है बिना रीजन टू बिलीव पुराने 5 वर्ष के असेसमेंट को खोलने का। उच्च न्यायालय ने कुछ समय डिटेल में सुनने के बाद यह होल्ड किया कि ये जो आप हमारे सामने आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं उसको वहां जाके भी कर सकते, तो हम क्यों सुने। और फिर स्पष्ट रूप से 8 लाइनों में लिख के दिया कि आपको सिर्फ ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप वापस जा सकते हैं और वो हर आपत्ति जो आपने यहां लिखी हमारे सामने वो वहां भी रेज कर सकते हैं, लेकिन वो आपत्ति भी हम लिख रहे हैं कि आप वहां रेज कर सकते हैं, यानी कि रीजन टू बिलीव कोई है ही नहीं और रीजन टू बिलीव न होने पे आप ये नोटिस जारी नहीं कर सकते। इस मुद्दे को भी आप वहां रेज कर सकते हैं। ये अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है, ज्यूरिसडिक्शनल इशू है। और इस कारण से, इस आधार पर, इस रिकॉर्डिंग के बाद और इस लिबर्टी, कानून में लिबर्टी कहते हैं, इस स्वतंत्रता के बाद जो स्पष्ट लिखी है उस ऑर्डर में, हमने विड्रॉ की याचिका। और मुझे बड़ा मजा आया देख के कि आज 5 घंटे सरकार बंद हो गई, काम बंद हो गया, सिर्फ एक काम चल रहा है, किस प्रकार से आप सबको एक चीज फीड की जाए जिसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी गौरव महसूस करती है कि नेशनल हेराल्ड जैसे अखबार के साथ उसका नाम जुड़ा है और नेशनल हेराल्ड का नाम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा है। ये स्वतंत्रता के पहले का वो अखबार है जिस वक्त हमारे
स्वतंत्र बोलने, सोचने और व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की जो मानव अधिकार है, उसका हनन और कुचलना ब्रिटिश सरकार कर ही नहीं रही थी, लेकिन बहुत हद तक आज के वातावरण जैसा ही कर रही थी। उस वक्त भी तीव्रता से, व्यापकता से, जोश और हौसले से नेशनल हेराल्ड ने अपनी आवाज उठाई थी और उसी व्यापकता, जोश और हौसले से आज कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज उठाती रहेगी। आपको अब मैं केस की बात नहीं कर रहा, वो बात खत्म हो गई। हमने पहले भी इसी पोडियम से नेशनल हेराल्ड के विषय में हैंडआउट्स दिए थे और सब तथ्य एक FAQ के फॉर्म में आपको दिया गया था। वो वापस चाहेंगे तो आपको हम आज दे देंगे, लेकिन संक्षेप में मैं आपको याद दिला दूं कि क्या मिथ्या प्रचार हो रहा है। क्या ये संभव है कि कोई भी संपत्ति अचल या अचल न हो, संपत्ति किसी प्रकार की यंग इंडिया की कोई 1, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति हड़प सकते हैं? क्या ये संभव है? ये सब कुछ उस कंपनी के साथ है, उस कंपनी के अधिकार से, उस कंपनी के स्वायत्व में है, जो एक सेक्शन 25 कंपनी है। 25 कंपनी की परिभाषा ही है, बनाई इसलिए गई है सेक्शन कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियां होती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब है कि 1 पैसा डिविडेंड नहीं दे सकती, किसी प्रकार से अपने प्रॉफिट का वितरण नहीं कर सकती, डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को उसका कोई फायदा नहीं हो सकता। ये वो कंपनी है। क्या लोन लिया जा सकता है, दिया जा सकता है? हर पॉलिटिकल पार्टी ले रही है। एक्ट पढ़ लीजिए उठा के, सेक्शन 13 में बड़ा स्पष्ट ये अनुमति है। कोई प्रॉपर्टी को हड़पने का प्रयत्न हुआ, कोई ट्रांसफर हुई प्रॉपर्टी, जरा बताएं कहां हुई है? एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी, जो कि सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, उसमें है वो। अगर हड़पना होता तो क्या अधिकार क्षेत्र नेशनल हेराल्ड के ऊपर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी का इतने 60 वर्षों से कम था क्या? अधिकार क्षेत्र तो उतना ही था, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो। बदलाव सिर्फ इतना हुआ कि एक सेक्शन 25 कंपनी बनाई गई, नॉट फॉर प्रॉफिट। उसको कहते हैं कि प्रॉपर्टी हड़प ली, ट्रांसफर कर दी, हस्तांतरण कर दिया। तो मैं कहूंगा कि इससे उल्टा बौखलाहट, भय और एक जो बहुत मूलतः फ्रस्ट्रेशन है सरकार का, उधर झलकता है। और अगर वो समझते हैं कि इससे भयभीत करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो मैं समझता हूं उनको जाकर अपना इतिहास वापस पढ़ना चाहिए।